Dear student, in the last class I have given you the philosophy behind the electrical machine. Okay, that why we are studying this chapter called electrical machine, and under this category we have many machines, and the first foremost machine is the transformer. I have also given you the definition of the transformer. The transformer is nothing but a static device. Static matlab stationary. Stationary means which remains at its own place, does not have any motion. Is it clear? तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो it is an static device being stationary, and later on I will tell you that a static device has a maximum efficiency, has a maximum, in the sense, what do you mean by maximum efficiency? Means this efficiency is up to 98 or 99%. Is it clear? And why this is due? Because it is a static device, therefore there is no rotational loss is there. जब रोटेशन होता है तब कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, इज इट क्लियर? वो इस प्रकार के लॉस इसमें नहीं होते, इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बाकी सभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हाईएस्ट होती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 97, 98 एंड इवन 99. सो स्टेप इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर एसी सर्किट. माइंड इट, ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी. It never works on DC. Isn't it? So question is be also asked, will transformer work on DC? Then answer is no. I will tell you later on why. Okay. Input and output both are alternating quantities. That is AC. That is very clear from the definition. Okay. What is being done? Why it is called transformer? Because it transforms what? Voltage and current, not power. Mind it. Ideally, आदर्श अवस्था में power remain constant. Power remain constant. Okay. Next. So, how this transformer is being used? You can see from figure, there is a generating station is there. So have you gone through the power map which is being there in our department? कभी देखा आपने? तो आपने पता किया कि हमारे उदयपुर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? किसी जनरेटिंग स्टेशन से ही आ रही है. कहीं जनरेट होगा ना, वो कहाँ है जनरेटिंग स्टेशन मालूम है आपको? एटॉमिक पावर प्लांट रावत भाटा. There is another generating station at Kota thermal power station. Okay, it is feeding majority of our Rajasthan state districts. Is it clear? But we in Udaipur we are getting from atomic power plant Rawat Bhata. Rawat Bhata in which district? It is in Chittorgarh district. It is in Chittorgarh district. 2 units lines are coming. So atomic power plant is our generating station. Clear? Now from this generating station, now this generation is being done at either 11 kilovolt or 33 kilovolt as per the generator design. Is it clear? But this is to be what? This is to be stepped up. This is to be stepped up. Why it is being stepped up? Because in power system you will find that as you increase the voltage level, the losses reduces. The losses reduces. So though it is generated at 11 kilovolt, but it is being stepped up to 220 kilovolt. Stepped up to
220 kilovolt. So from Rawat Baga substation, where the electricity is being generated at 11 kilovolt, it is being stepped up by whom? So we are stepping what? Voltage. We are stepping what? Now mind it, there is no stepping of power. Power remain constant. जितना जनरेटिंग स्टेशन बनाएगा उतना ही आपको मिलेगा. ऐसा नहीं कि आपने बनाया 40 और स्टेप अप करके आपको 60 मिल गया, ये तो चमत्कार हो जाएगा. इज इट क्लियर? 40 बनाओगे, लॉसेस के कारण आपको 38 या 35 या इतना ही मिलेगा, और आइडियल केस में 40 का 40 मिल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिल सकता है. इज इट क्लियर? तो लेकिन हम चाहते हैं कि जिस कंडक्टर से ये बहे, इज इट क्लियर, उसमें लॉसेस क्या हो, मिनिमम से मिनिमम. तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बड़ा स्टेप अप कर देते हैं. स्टेप अप कितना कर देते हैं? जैसे मान लो हमारे यहाँ पर देवारी स्टेशन है. कितने का है देवारी स्टेशन? 220 किलोवोल्ट. कितना? तो 11 किलोवोल्ट से एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो राइज करता है कितना? 220 किलोवोल्ट. और 220 किलोवोल्ट की लाइन आ रही कहां पर? देवारी सब स्टेशन पे. तो जो भी सब स्टेशन है उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो इनकमिंग वोल्टेज के कारण है. किसके कारण है? वोल्टेज के कारण. उसके बाद वो भी कुछ ना कुछ स्टेप डाउन करेगा. अब यहां आ गया, कहां गया? देवारी सब स्टेशन. फ्रॉम होम रावत वाटर. ठीक है. अब हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट हमें घरों तक लाना है. कहां लाना है? घरों तक लाना है. तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करेंगे. जैसे क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करेंगे. तो 220 केवी देवारी स्टेशन पे रिड्यूस होता है 132 केवी में. कितना? 132 केवी में. अब 132 केवी रिड्यूस होकर कहां आया? आपके प्रताप नगर सब स्टेशन पे. कौन सा प्रताप नगर? 132 केवी प्रताप नगर सब स्टेशन. इज इट क्लियर? और भी कई बने हुए हैं. जैसे आप आगे जाएंगे तो सुखेर में बना हुआ है 132 केवी सब स्टेशन. सभी जगह मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट है एक लार्ज मासेस की, वहां पर सब 132 केवी के सब स्टेशन है. 132 केवी नाम क्यों है? क्योंकि कौन सी लाइन आ रही है? 132 केवी इनकमिंग लाइन आ रही है. कहां से आ रही है? फ्रॉम 220 केवी सब स्टेशन. 220 केवी ने क्या किया? 132 में स्टेप डाउन किया. तो क्या जरूरत पड़ी अब वापस आपको? ट्रांसफॉर्मर की. कौन सा ट्रांसफॉर्मर? ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. फिर 132 यहां आया प्रतापनगर सब स्टेशन पे. एग्जांपल से समझिए. अब वापस इसको रिड्यूस करना है. तो प्रतापनगर सब स्टेशन कितना रिड्यूस करेगा? 33 किलोवोल्ट में. कितना करेगा? 33 केवी में. तो प्रतापनगर में आ कौन सी रही है? 132. और जा कितने की रही है? 33 केवी सब स्टेशन. अब 33 केवी सब स्टेशन अभी तक कहां? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है. अभी तो घर में कितनी आ रही है? 220 वोल्ट. कितनी आ रही है? 200 सिंगल फेज. इज इट क्लियर? तो उसको अभी और तो 132 केवी से कहां पहुंचे हम आए बौरा गणेश जी. कहां है? बौरा गणेश जी. बौरा गणेश जी में आपने देखा होगा एरिया में एक बना हुआ है आपका सब स्टेशन. सो देयर अगेन स्टेप डाउन 132 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट. कहां? कितना? स्टेप बाय स्टेप. तो फिर वापस किसकी जरूरत पड़ेगी? एक ट्रांसफॉर्मर की. कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन कहलाएगा, जो इनपुट के वोल्टेज को डाउन कर रहा है, आउटपुट में उससे कम मिल रहा है. कितना मिला? बौरा गणेश जी से कितना निकला? सब स्टेशन से 11 किलोवोल्ट. कितना निकला? 11 किलोवोल्ट. अब 11 किलोवोल्ट की लाइन कहां आएगी? हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में. कहां आई? ठीक है. और शायद मैं आपको इन हाउस ट्रेनिंग में वहां लेकर भी गया था. इज इट क्लियर? ठीक है. कहां है वो? डेयरी कॉलेज के अंदर. इज इट क्लियर? जो गर्ल्स जो होम साइंस की तरफ रास्ता जाता है, गर्ल्स हॉस्टल की तरफ रास्ता जाता है, वहां डेयरी कॉलेज में एक ट्रांसफॉर्मर पड़ा है जहां पे क्या आ रही है? 11 किलो वोल्ट लाइन आ रही है. ठीक है. वहां से अलग अलग जगह जा रही है 11 किलो वोल्ट लाइन. ठीक है. 1:1 रेशियो में. इज इट क्लियर? एक होम साइंस, एक सीटीए, एक कंप्यूटर सीटीए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सीटीए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, सीटीए फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट, हॉस्टल. इज इट क्लियर? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, सेक्रेटरीट. सो एट डिफरेंट लोकेशन दैट 11 किलो लाइन इज कमिंग. और वहां पे क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 11 किलो वोल्ट लाइन. पीछे से आप देखेंगे, गो टू द सब स्टेशन सी, वहां एक और ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है. वो फिर रिड्यूस करेगा किसमें? 440 वोल्ट. किसमें? 440 वोल्ट 3 फेज. 440. ये सारी लाइन जो आ रही कौन सी आ रही थी?
3 फेज, ठीक है। उसमें से आप फेज लगाइए, एक न्यूट्रल, और अलग अलग जगह आप इसको सप्लाई दे दीजिए, और आपके लैबों में ये जो आज आपके क्लासरूम में जो आ रही है लाइट इज ड्यू टू दैट सिंगल फेज 220 वोल्ट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने सभी देखा, रास्ता तय किया था जनरेटिंग स्टेशन से, लास्ट में आकर कहां यूटिलिटी पर खत्म हुए जहां पर कंज्यूमर था। इज इट क्लियर? आते 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 कितना पहले रेस किया, रेस करने के बाद रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने कहां तक आ गए? 220 वोल्ट। इसी बीच में ये रिडक्शन और स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में कौन से डिवाइस ने हमारी सहायता की? ट्रांसफॉर्मर। आप समझ गए ट्रांसफॉर्मर की इंपॉर्टेंस? इज इट क्लियर? और अगर सीधा जनरेटिंग स्टेशन का 11 किलोवोल्ट यहां लेकर आते तो इतना खतरनाक लॉस होता कि वो मान लो जनरेट कर रहा है 1 मेगावाट और आपको मिलता 0.25 मेगावाट। कितना? 0.25 मेगावाट। इसका मतलब 0.75 मेगावाट कहां चला जाता? लॉसेस। केवल 25% एफिशिएंसी के साथ काम होता, लेकिन हमें पहले स्टेप अप करना पड़ा, फिर स्टेप स्टेप में हमने इसको रिड्यूस किया। यू गॉट माय पॉइंट? और आप देखेंगे ये सारे के सारे 11 के मल्टीपल्स हैं। इज इट क्लियर? है कि नहीं है? वो क्यों है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इज इट क्लियर? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है। सो द सेम हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ these voltages are these 13.5 and 6.0. This is old diagram, but it is very clear from generation, transmission, distribution, and from distribution to consumer. Consumers are of many types. आप किस श्रेणी में आते हैं? आपका घर डोमेस्टिक। किस में आते हैं? डोमेस्टिक। ठीक है। फिर आता है फिर एक आता है एग्रीकल्चर लोड, जो किसान लोग अपने खेतों में मोटर पंप यूज करते हैं 3 फेज, वो दूसरा है। तीसरा इंडस्ट्रियल लोड। तीसरा क्या आ गया? इंडस्ट्रियल। चौथा आ गया कॉमर्शियल। इज इट क्लियर? कॉमर्शियल लोड मतलब ये जितने होटल्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, ये सब पैसा कमा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इनकी चार्जेस अलग अलग, सबके चार्ज अलग अलग है। ठीक है। फिर एक आ गया आपके नॉन डोमेस्टिक लोड। नॉन डोमेस्टिक लोड, ये क्या होता है नॉन डोमेस्टिक लोड? जैसे किसी ने घर में अपने टेलरिंग की दुकान खोल रखी है, ठीक है, तो घर में उसने दुकान खोल रखी है, तो किस श्रेणी में आएगा? नॉन डोमेस्टिक है। तो घर में, लेकिन यूज किसके लिए कर रहा है? सम फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो उसको उसका होटल जितना किराया ना लेकर और ना डोमेस्टिक वाला किराया लेकर बीच का किराया, तो उसको किस श्रेणी में डाल दिया? यू गॉट माय पॉइंट? इंडस्ट्री हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गए हमारा। ठीक है। इंस्टीट्यूशन को भी हम डोमेस्टिक लोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट फॉर एनी प्रॉफिट पर्पस, इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। इज इट क्लियर? तो हम इससे कॉमर्शियली चार्ज कैसे कर सकते हैं? You got my point? So like this, we have a complete this scenario of our complete power system. So in power system, you know that every end, from generation, transmission up to distribution, there is a need of transformer. तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मर क्यों पढ़ना है। Is it clear? तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये हो जानी चाहिए, वरना पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़ लोगे, लास्ट में पूछोगे सर इसका यूज क्या है। तो पहले मैंने आपको यूज बता दी। कभी जाकर अपने घर के मोहल्ले में जाकर देखना, आपका ट्रांसफॉर्मर एकदम उसके सामने हाथ मत लगाना, दूर खड़े रहना 5 फीट, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना चारों तरफ से, क्या क्या उसमें आ रहे हैं, कैसे वाइंडिंग्स आ रही हैं। कभी हम इसके यहाँ पर भी दिखाएंगे आपको। इज इट क्लियर? टुडे और टुमारो आई विल शो यू हाउ दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये जो लगा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में, ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। और जो जनरेटिंग स्टेशन या ट्रांसमिशन स्टेशन पे लगे वो क्या कहलाता है? पावर ट्रांसफॉर्मर। वो क्या कहलाता है? पावर। क्योंकि उनको पावर, दे आर ऑफ एमवीए रेटिंग, दे आर ऑफ एमवीए रेटिंग, दीज आर ऑफ केवीए रेटिंग्स। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ऑफ केवीए रेटिंग। इवन आपके ट्रांसफॉर्मर कई प्रकार के होते हैं, अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा। इज इट क्लियर? आपके एडेप्टर नहीं होता है, चार्ज करते हो चार्जर, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर है। मतलब कितना वर्सेटाइल है। और चार्जर, जहां जहां मोबाइल वहां चार्जर, किचन में भी, स्टडी रूम में भी, बेडरूम में भी, डाइनिंग रूम में भी, इवन लोग तो गार्डन में बातें चार्जिंग कर दिया।
So charger is the transformer. You can see it has occupied place in each and every corner of your home and life. अब रेलवे स्टेशन पे आजकल कॉमन हो गया चार्जिंग स्टेशन, एयरपोर्ट पे तो ही है, बस स्टैंड पे भी मिलेंगे, चार्ज कर लो। और चार्ज किससे करेंगे? तो चार्जर। और चार्जर में क्या है? हमारा ट्रांसफॉर्मर। घर से कहो कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। यू गॉट माय पॉइंट? अब आते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस? म्यूचुअल इंडक्शन। इज इट क्लियर? हाउ टू run this pen? Okay, so I want to write down so it is based on principle of mutual induction. What is principle of mutual induction? In the last class I have already told you that in principle of mutual induction what happens, we have to take into account two coils. हमें क्या लेनी है? दो coils लेनी है, ठीक है, और both are separated to each other. Both are separated to each other, and if you apply a supply, suppose these are two coils, if you apply any voltage source or power source here, what will happen? The induced EMF or EMF is seen in the second coil. Both, although they are not connected to each other, आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन यहां वोल्टेज लगाया और उस कॉइल में वोल्टेज आ गया, तो ये चमत्कार की तरह है कि नहीं है? But scientists has explained that this is not any magic. It is based on principle of mutual induction. That as soon as current will flow through this coil, what will happen? Which type of current? Alternating. Mind it, this principle of mutual induction through which induced EMF is produced is always applied to AC only. So what happens? Current flowing, coil में current flow हुआ, जैसे आपने voltage source लगाया, is it clear? तो क्या हुआ? coil में क्या produce होगा? When current flows through a conductor, what happens? And magnetic field is produced. A magnetic फील्ड इज प्रोड्यूस एज पर ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, अब हमने कौन सा वोल्टेज सोर्स लगाया, आप बताओ? अल्टरनेटिंग। कौन सा लगा? एसी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एसी वोल्टेज। करंट कौन सा होगा? एसी होगा कि नहीं होगा? करंट एसी होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? एसी। डू यू एग्री और नॉट? तो वोल्टेज एसी, करंट एसी, मैग्नेटिक फील्ड एसी, और मैग्नेटिक फील्ड एसी मतलब फील्ड इज वेरिंग इन नेचर। फील्ड इज वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये जो फील्ड है, इज इट क्लियर, ये न केवल अपने स्वयं को लिंक कर रहा है, मगर आस पे कॉइल भी पड़ी उसको भी एक लिंक कर रहा है। पास में कॉइल है, दूसरी कॉइल ब्लू कलर की दिख रही है, ये रेड कलर की और ये ब्लू कलर की, आपस में कनेक्टेड है क्या इलेक्ट्रिकली? श्योर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसने अपने कॉइल को भी लिंक किया और पास में कॉइल पड़ी उसको भी लिंक किया। इज इट क्लियर? देयर इज सब लिंकेज ऑफ फ्लक्स इज देयर फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। सेकेंड वन को क्या कहा हमने? सेकेंडरी। क्लियर? अब फ्लक्स कैसा था? वेरिंग। अल्टरनेटिंग था मतलब चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और हमारे एक जनाब थे जिनका नाम था, एक जनाब थे जिनका नाम था फैराडेज। क्या था? फैराडेज। फैराडेज ने दो लॉज दिए। पहला लॉ दिया
कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an induced EMF is produced. Relative motion, coil स्थिर, फील्ड घूम रहा है, फील्ड स्थिर, कॉइल घूम रही है. इज इट क्लियर? तो दोनों के बीच में एक सापेक्षिक गति हो गई नहीं हो गई? तो उसने कहा जब सापेक्षिक गति होगी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब क्या होगा? उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस इसलिए कहा क्योंकि हमने कंडक्ट करके नहीं किया. दिस इज कंडक्शन और दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वैरिंग फ्लक्स है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके आउटपुट टर्मिनल में. अरे समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है. तो ये प्रिंसिपल, चूंकि ये किसके बीच में इंडक्शन हो रहा है, एक तो कंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है. इंड्यूस मतलब बिना टच किए आपने अपनी कुछ एनर्जी दे दी, पावर दे दी, तो वो क्या कहलाएगा? इंडक्शन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बिना मारे पीटे मैं अगर तुम्हारा माइंड चेंज कर दूं पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन. और कब किया? जब तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए. इज इट क्लियर? ऐसा नहीं घर बैठे कर दिया मैंने. इज इट क्लियर? कीर्ति सिंह आगे बैठी है, मैं सुना रहा हूं, माइंड में जा रहा है, ध्यान से ध्यान इसका केंद्रित है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ग्रहण कर रही है. ठीक है. फिर इसके दिमाग में एक ही ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर. इज इट क्लियर? एंड हु हैज गिवन? दवे सर दवे सर दवे सर. तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. इज इट क्लियर? मैंने कोई तार लगाया क्या कि मेरे यहां मुंह से एक तार लगाया और फिर इसने, दिस इज ऑल ड्यू टू इंडक्शन. सिमिलरली हियर आल्सो, ओके, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट कंडक्शन. बट हु इज द मीडियम? Medium is the magnetic field. Medium is the magnetic field. Now in order, now if you place these in the air, if you place this in the air, then there is a great chances of losses are there. अगर एयर में रखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा लॉस होंगे कि नहीं होंगे? Is it clear? So what we are placing this coil, these two coils on a ferromagnetic material, जिसको मैग्नेटिक फील्ड अच्छा लगता है. Is it clear? और वो मटेरियल क्या कहलाते हैं? Which has the power to conduct magnetic field. They are called ferro. हमारा ये आयरन नहीं होता. आयरन को मैग्नेटिक फील्ड बहुत, आप मैग्नेटिक फील्ड के पास आयरन ले जाए क्या होगा? उसको क्या है? फिलिक. दिस इज फिलिक. मैग्नेटिक फिलिक का एक तो फोबिक होता है, फोबिया नहीं कहते, डर. फिलिक लव. इज इट क्लियर? तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से प्यार होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक. आप इस वुड पे पानी गिरा दीजिए, क्या होगा? फैल जाएगा. इसका मतलब इसको, इस जो ये आपका कोटा सीमेंट है, इससे लव है. ठीक है. तो दिस कोटा सीमेंट स्लैब हैज अ इज हाइड्रोफिलिक. ठीक है. आप कमल के फूल पर पानी गिरा दीजिए, बूंद बन के खड़ी रह जाएगी, हवा आएगी, चलेगा. अच्छा, हाइड्रो, इवन जो कमल के पौधे हैं उसको कहते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं? इसलिए कमल के जब भी कोई उदाहरण देना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी, गलत परिस्थितियों में भी जब आगे बढ़ जाता है, उसको कमल कहते हैं. कमल का उसको उपाधि दी जाती है, क्योंकि कमल उगता कहां? कीचड़ में, लेकिन कितना सुंदर होता है. इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है. तो उसमें ये जो प्रॉपर्टी होती है वो साइंटिफिक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सुपर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी. कोई भी गंदगी पानी वाली आएगी साफ कर देता, वो टच नहीं होता है. इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि पुष्पों में कमल. ऐसे थोड़ी कहते बैठे बैठे फूल अच्छा लग गया था. तुम होते तो कहते पुष्पों में रोज गुलाब. यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? बट ही हैज गिवन अ नेम ऑफ लोटस. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ग्रेट साइंटिफिक प्रॉपर्टी.
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सो वी हैव टू बाउंड दीज कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड over a ferromagnetic material. A layman will say, sir, core, iron core. That is called iron core. That is called this. You are seeing this grey color. This is called iron core. So two parts are clear in transformer. One is winding. Two types of windings are there. क्या नाम है? एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी किसे कहेंगे? Who will call you primary? Who will you call primary? Where supply is given. Okay, electrical supply is being given is called primary, and where output is being taken is called, and these are wounded over a magnetic material called core. So layman will say, of what material core is made up of? Iron. सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ आयरन मिल जाएगा और उसके ऊपर बांध दे. अगर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि इट इज नॉट आयरन बट सम impurities are mixed in the iron, okay, and we have a cold rolled silicon steel. Cold rolled silicon steel is being used. Why it is being used? इसके पीछे, सबके पीछे तो कोई साइंटिफिक रीजन है, ऐसे नहीं है अच्छा मिल गया मटेरियल चलिए लगा दे. दिस इज नॉट द केस. उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब आयरन पे शुरू में किया तो आयरन ही लिया होगा आपकी तरह, ठीक है, आयरन लिया तो काम तो हो गया, इनपुट में आउटपुट वोल्टेज, इनपुट में वोल्टेज या आउटपुट में वोल्टेज मिल गया, पावर मिल गया, मगर हमने देखा लॉसेस बहुत हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइप के लॉसेस का. तो रिसर्च इसी पे कहते हैं यार इस लॉसेस को कैसे कम किया जाए. तो उन्होंने कहा आयरन मत यूज करो, इस आयरन में थोड़े बहुत सिलिकॉन मिलाओ, कुछ थोड़ा सा बहुत फॉस्फोरस मिलाओ, ठीक है, इसको कोल्ड रोल करो, हॉट रोल भी मत करो, क्या करो कोल्ड रोल करो. तो वहां से एक मटेरियल बना, उससे पाया कर यार इससे तो लॉसेस बहुत ही कम हो गए. सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैट कोल्ड रोल सिलिकॉन स्टील. और बात समझ में आएगी नहीं है? उसके बाद मतलब ऐसे डेवलपमेंट होते गए. जैसे सबसे पहले लिया आयरन कि क्या करो साहब बना दो, एक फ्रेम बना दो, ठीक है, आयरन लिया, बीच में से उन्होंने इसी की और इस प्रकार आप देख रहे फ्रेम, इस फ्रेम पे क्या रख दिया प्राइमरी, इस फ्रेम पे क्या रख दिया दूसरे लिम्स पर, ये लिम्स है, एक लिम्ब पे क्या रख दी, क्या बाउंड कर दी प्राइमरी, दूसरे लिम्ब पर सेकेंडरी, ठीक है. उन्होंने पाया यार इसमें लॉसेस कई प्रकार के हो रहे हैं. एक तो मेटेरियल के कारण भी हो रहे हैं, मेटल क्या था आयरन. दूसरा पाया ये अभी आपको क्या दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, के टुकड़ों में दिख रहा है सॉलिड, कि यार सॉलिड के कारण बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं. उसको आगे चलकर उन्होंने कहा एडी करंट लॉस, क्या कहा एडी करंट लॉस. तो लोगों ने सोचा क्या करें, तो किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने कहा इसको क्या करें, सॉलिड को छोटी छोटी थिन लेयर्स में काट दें, ठीक है, काट के फिर इनको चिपका दें वार्निश की सहायता से, ठीक है. तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा लैमिनेटेड कोर. क्या करेगी वो, तो उससे पता किया कि एडी करंट लॉस बहुत कम हो गए, एडी करंट लॉस कम हो गए. तो मेटेरियल भी अलग हो गया और कोर का शेप भी अलग हो गया. नाउ इट इज नॉट सिंपल कोर बट इज ए लैमिनेटेड कोर. हिस्टेरिसिस लॉस को रिमूव करने के लिए हमने मेटेरियल चेंज किया, आगे बताऊंगा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है. तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने मेटेरियल चेंज किया, आयरन ना लेकर कोल्ड रोल सिलिकॉन स्टील यूज किया. और एडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, लैमिनेटेड कोर. अरे समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है. तो दो पार्ट हो गए, कोर हो गया और बाइंडिंग्स हो गए. क्लियर, इज देयर एनी डाउट सो फार? अच्छा, बाइंडिंग किसकी बनी होती है, जब हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं सारी बातें लिखनी होती है. दैट अ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी मींस where the voltage is being applied or source is being applied, and secondary where output is or load is being connected, output is obtained or load is connected, is it? हम आउटपुट का कहीं ना कहीं किसी लोड में देंगे कि नहीं देंगे. लोड क्या, हमारा खुद का कंज्यूमर. भाई जो ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज सप्लाई आ रही है उसका क्या कर रहे हो तुम, देख देख के खुश हो रहे हो, पंखा लगा रहे हो, बल्ब लगा रहे हो, है जो बड़े पैसे वाले हैं वो एसी यूज कर रहे हैं, अभी सर्दी में हीटर यूज कर रहे हैं,
अलग अलग प्रकार के हीटर है, कोई स्टैटिक वाला कर रहा है, कोई ब्लोअर वाला यूज कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? लोड, इलेक्ट्रिकल लोड। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड, जिसमें वोल्टेज भी जा रही है और करंट भी जा रही है। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज पावर, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर आल्सो इज पावर, विच इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज योर लोड। ये क्या है? दिस कैमरा इज लोड, दिस टीवी इज आल्सो लोड, ओके, दिस डिजिटल पोडियम इज आल्सो लोड बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हेन आई से लोड, इमीडिएटली या कोई ना कोई कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमिंग मटेरियल है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? You should respond it. So, principle of mutual induction is clear. Construction, 2 windings, इसके बारे में लिख लिया. Core, previously iron core was being used, being a ferromagnetic material, but later on it has been found that to reduce the hysteresis loss, core rolled silicon steel is being used. Clear? Okay. And to reduce the eddy current loss, we go for laminated core. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Now, through the slides, I have explained what I have delivered you. The AC primary current produces alternating flux in the core. Magnetic flux. AC आपने लगाया, क्या प्रोड्यूस किया उसने? वोल्टेज लगाया, AC करंट फ्लो हुआ, AC करंट के कारण क्या हुआ? AC मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग प्रोड्यूस, फाई व्हिच इज कॉल्ड फाई। फाई से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, नहीं करते? फिर मोस्ट ऑफ इट गेट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें से बहुत सारा जो फ्लक्स है वो किसको लिंक हो गया? सेकेंडरी। माइंड इट, ये जो फ्लक्स प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अभी जो मैं बात बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ दिस, व्हाट इज आई हैव रिटन? मैंने पूरा नहीं कहा, मैंने ऑल नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इज लिंक टू द सेकेंडरी। इसका मतलब कुछ फ्लक्स प्राइमरी ने अपने पास ही रख लिया तुम्हारी तरफ। ज्ञान को पूरा बांट देंगे तो मुझे कौन पूछेगा सर? इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन ये गलत धारणा है। तो इसको हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने कहा कि जो फ्लक्स उसने अपने पास रख दिया, मतलब उसने अपनी कॉइल को ही लिंक किया, प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया और वापस घूम के कहां जा रहा है? प्राइमरी में, ऐसे ऐसे प्राइमरी के आसपास, सेकेंडरी को लिंक नहीं कर रहा। उसको हमने दर्जा दिया लीकेज फ्लक्स। उसको हमने क्या नाम दिया? लीकेज फ्लक्स। क्योंकि हम तो विश्वगुरु हैं, हर चीज को क्या, जो नहीं आए वो भी बता दो। आए तो बताना ही है पूरा पूरा, और नहीं आया वो भी बता। और जो आपने रख लिया उसको हमने क्या कहा? ये लीकेज फ्लक्स। ये क्या है? लीकेज है आपका, अंदर अंदर घूमता रहेगा, पागल बन जाओगे। इज इट क्लियर? इसलिए ज्ञान को बांटो। तो यहां पर भी जो फ्लक्स, ये देखिए, ये फ्लक्स क्या हो रहा है? पूरा का पूरा लिंक कर रहा है सेकेंडरी को। लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो सिर्फ यहां यहां घूमेगा, उसको हम क्या कहेंगे? लीकेज फ्लक्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स वो क्या कहलाएगा? सिमिलरली अगर मैंने यहां लोड कनेक्ट कर दिया, हर्षवर्धन, व्हाट विल हैपन? If I connect the load, what will happen? Current will flow. Induced EMF किस नेचर का है? AC या DC? AC। कौन सा करंट फ्लो होगा अगर लोड कनेक्ट कर दिया मैंने सेकेंडरी पे? कौन सा? श्योर? AC करंट फ्लो होते क्या होगा? वो भी एक फ्लक्स बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फ्लक्स। ठीक है, वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लक्स। अब ये फ्लक्स सेकेंडरी का भी कुछ फ्लक्स प्राइमरी को लिंक करेगा। इज इट क्लियर? ये दोनों मिलकर कॉमन जो आपस में दोनों आपस में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैंने बताया कि प्राइमरी भी कुछ रख लेता है। प्राइमरी रखता है नहीं रखता है? तुम्हारी तरह मैं बता दूंगा सर, फिर मुझे कौन पूछेगा? तो उसको हमने क्या दर्जा दिया, क्या नाम दिया? प्राइमरी लीकेज फ्लक्स।
उसी प्रकार सेकेंडरी ने भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया, कुछ तो आपस में बांट दिया प्राइमरी के साथ, लेकिन कुछ उसने भी अपने पास रख दिया। एक ही जमात के लोग हैं, ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है, असर जाएगा क्या? इसने भी अपना कुछ फ्लक्स रख दिया, इसका फ्लक्स क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। तो तीन फ्लक्स बता दिए मैंने आपको, एक तो मेन फ्लक्स विच इज लिंकिंग बोथ द कॉइल। ये जो फ्लक्स है ना, कोर में दिख रहा है, दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, ये क्या करेगा? मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। और इसके अलावा इन दोनों के पास अपने अपने भी फ्लक्स है, क्या कहलाते हैं वो? प्राइमरी लीकेज फ्लक्स है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स: मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स एंड what I have told you, explained you, is being written on this slide, that flux is produced. Most of the changing flux links the secondary winding. What happened? The varying flux, being AC in nature, it will be varying, will induce voltage into the secondary winding. That is clear or not? Okay. And this is according to the Faraday's law. पहला लॉ तो बताता है कि एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। द इंड्यूस ईएमएफ सो प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज E इज इक्वल टू d∅/dt। वो फ्लक्स किस गति से चेंज हो रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा एक और लॉ आता है, लेंजेस लॉ। वो क्या बताता है? डायरेक्शन। द इंड्यूस ईएमएफ सो प्रोड्यूस फ्लो इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज। किसको अपोज करता है? कॉज। ठीक है। तुम जिस दिन विद्वान हो जाओगे, बड़े लिखे होगे, तो मेरा ही विरोध करोगे कि सर मैं इससे ज्यादा और आगे बढ़ सकता था यदि आप नहीं पढ़ाते थे। आपने पढ़ाकर मेरा समय व्यर्थ कर दिया। बट दिस इज नॉट द केस। इज इट क्लियर? इट इज केस इन द इंड्यूस ईएमएफ ओनली दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज। तो कॉज कौन है यहां पर? वोल्टेज। सबसे पहला प्रथम हमें वोल्टेज जैसे ही लगा तभी तो करंट बहा, और करंट के कारण क्या हुआ? फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो उस फ्लक्स ने सेकेंडरी को लिंक किया। सेकेंडरी में क्या हुआ? इंड्यूस ईएमएफ हुआ। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं था, तुम्हारी तरह रेस्ट करना चाहता था। ओम शांति शांति शांति। बट तुमने उसको एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट करते क्या करेगा? जिसने प्रोड्यूस किया उसके ऑपोजिट, उसकी प्लस माइनस जो पोलरिटी है उसके जस्ट ऑपोजिट वो पोलरिटी बनाएगा, ताकि वोल्टेज अपोजिशन में हो। अभी बताएंगे बाद में, बट कीप इन माइंड दिस थिंग। ठीक है। जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, वोल्टेज चेंजेस, करंट चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। इफ यू आर अप्लाइंग अ 50 हर्ट्ज सप्लाई ऑन द प्राइमरी साइड, you will get an induced EMF of 50 hertz only. और जो सबसे खूबसूरत बात, there is no electrical contact between primary and secondary. Okay, the energy is being transferred via magnetic path. This is clear or not? So I am ending here today. Construction is clear. Principle of mutual induction is clear. Some detail also I have given you regarding the leakage flux and main magnetic flux. Okay, and tomorrow we will further go through, and mind it, this whole electrical machine contains numericals, so get ready for the numericals. That's all for today. Thank you.